My dear students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing polygons and the formulas related to them. Start करते हैं. So, what is a polygon? Poly means many. Gon implies sides. So, polygons are closed figures of many sides, obviously. ठीक है. So, what is many? For example, triangle. So, triangle is a three-sided polygon. Let us say n is number of sides. So, triangle is a three-sided polygon. Then comes quadrilateral. A polygon of four sides. Then comes pentagon. A polygon with five sides. Hexagon. Hexa implies six. Hexagon, a polygon with six sides. Heptagon, a polygon of seven sides. Octagon, octa implies eight. Octagon, a polygon of eight sides. Then nonagon, a polygon of nine sides, and decagon, a polygon of 10 sides. Is that clear? ठीक है. Okay. Now next, our general discussion will be focused on regular polygons and not any general polygon, but in general on the regular polygons. Regular polygons, and regular polygon implies a polygon with equal sides, where all side lengths are equal. So, except a few exceptions, we'll generally be discussing about regular polygons. Okay, and a general polygon is any polygon with any side lengths. Okay, okay. For example, our equilateral triangle will be a regular polygon, a regular triangle, a triangle with equal sides. Similarly, a quadrilateral with equal sides, that will be a square. Okay, ठीक है, and so on. Regular pentagon, regular hexagon, regular heptagon, regular octagon, and so on. Okay. एक और कॉन्सेप्ट है जो इंपॉर्टेंट है, जिससे बेस्ड क्वेश्चंस कभी आ सकते हैं और आए भी हैं पास्ट में. सो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगॉन्स. Convex and concave polygons. Okay. So, what is a convex polygon? In a convex polygon, all the angles are less than 180 degrees. And these are the polygons that we'll be concerned about in most cases. All the angles are less than 180. Okay, and a concave polygon में at least one of the angles is a reflex angle. At least one of the angles is a reflex angle. ये स्पेलिंग में उल्टा पुल्टा हो रहा है थोड़ी देर से. At least one of the angles is a reflex angle. और रिफ्लेक्स एंगल होता है हमारा ग्रेटर देन 180 डिग्री वाला एंगल. सो दैट पॉलीगॉन इज अ कॉन्केव पॉलीगॉन. ओके, लेट अस से एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट अस से दिस इज अ पॉलीगॉन. सो दिस इज अ कॉन्केव पॉलीगॉन का एग्जांपल, बिकॉज वी हैव सम एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 180 डिग्रीज. फॉर एग्जांपल दिस एंगल इज ऑफ 270 डिग्रीज, ग्रेटर देन 180. दिस एंगल, दिस इज ऑल्सो 270 डिग्रीज. ठीक है, बाकी सारे के सारे एंगल हमारे
convex है, but these two angles are 270. So that is why this is the example of concave polygon. Or let us say this polygon, because these angles are greater than 180. कॉन्वेक्स तो सारे ही हैं, ट्रायंगल ले लो, स्क्वायर ले लो, कुछ भी ले लो, तो उसके तो एग्जांपल्स हैं. ओके, ठीक है. नाउ इन अ पॉलीगॉन, sum of interior angles and sum of exterior angles. So if we are drawing any line bisected by a line or intersected by a line, so if this angle is alpha, this is beta, alpha plus beta क्या है, that is equal to 180 degrees. So same is the case in a polygon. So if you are drawing any polygon in a general, and let's say this is the angle, in interior angle of the polygon, if this is theta, तो एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या होगा, दैट विल 180 माइनस थीटा. इफ दिस इज इंटीरियर एंगल, सो एक्सटीरियर एंगल विल बी 180 माइनस थीटा, यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल फॉर एनी पर्टिकुलर वर्टेक्स, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 180 डिग्रीज. ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 180. एंड वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स, ये ध्यान रखना है, बिकॉज कॉन्केव में तो इंटीरियर अकेला 180 से ऊपर हो जाएगा. ठीक है, सो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स. ओके, फॉर नाउ. ओके, फाइन. सो इफ यू आर ड्राइंग अ ट्राइंगल, ध्यान से मेरी बात को समझना, तो फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा फिर. इफ यू आर ड्राइंग अ ट्राइंगल, वी नो कि ट्राइंगल में सम ऑफ एंगल्स क्या होता है, 180 होता है. 180 होता है. ट्राइंगल हैज 3 वर्टिसेस. अब हमको बनाना है इससे क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ऐड एटलीस्ट 1 वर्टेक्स, एग्जैक्टली 1 वर्टेक्स, तभी तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा. एक वर्टेक्स ऐड करना है. सो लेट अस से दिस इज दैट वर्टेक्स दैट वी हैव टू ऐड. सो विल बी कनेक्टिंग दीज 2 साइड्स. अब ये क्वाड्रिलेटरल हमारा बन गया, लेकिन क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए क्या हमें एक एडिशनल ट्रायंगल नहीं बनाना पड़ा. सो एक एडिशनल ट्रायंगल बना है, तो सम ऑफ एंगल्स विल बी नाउ 180 प्लस 180. ठीक है, तो जब 3 साइड्स थे हमारे, n वाज इक्वल टू 3, सम ऑफ एंगल्स विच इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स वाज इक्वल टू 180. अब हमने एक और साइड ऐड किया, तो 3 प्लस 1, 4 साइड्स हो गए, 4 वर्टिसेस हो गए. नाउ सम ऑफ एंगल्स 180 प्लस 180, दैट इज 360 डिग्रीज. अब हमें एक और साइड ऐड करना है, यानी पेंटागन बनाना है. क्या करेंगे, लेट अस से दिस इज दैट पॉइंट. अगेन मेक द साइड्स, एक और ट्रायंगल हमने ऐड कर दिया, इसमें भी सम ऑफ एंगल्स 180 होगा, यानी कि नाउ द सम ऑफ एंगल्स फॉर 4 प्लस 1 5 साइड्स इज इक्वल टू 360 प्लस 180, दैट इज 540. हेक्सागन बनाना है, एक और पॉइंट ऐड करेंगे. अगेन मेक द साइड्स 180 डिग्री एडिशनली ऐड हो जाएगा, बिकॉज यहां भी सम ऑफ एंगल्स क्या है, 180 ही है. सो दैट इंप्लाइज कि 6 साइड्स है. सो सम ऑफ एंगल्स विल बी 540 प्लस 180, दैट इज इक्वल 720. यू मस्ट हैव गॉटन द पैटर्न नाउ. तो क्या है पैटर्न यहाँ पे, कि फॉर 3 साइड्स सम इज 180, और फॉर एनी फर्दर साइड्स, अगर मैं 5 साइड्स चाहिए तो 180 को 2 टाइम्स और ऐड करेंगे, बिकॉज हमें 2 ट्रायंगल्स और ऐड करने पड़ेंगे. इजंट इट सो? सो इन जनरल द फॉर्मूला इज n-2 into 180 डिग्रीज, बिकॉज ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं. 3 - 2 विच इज 1, 1 into 180, और उसके बाद में फर्दर 180 ऐड करते जा रहे हैं. तो दिस इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स in any regular polygon or in any polygon in general, sum of all the interior angles of a triangle, that is n-2 into 180 degrees. Okay, clear है? Similarly, exterior angles, if you are starting a point, एक पॉइंट से हमने स्टार्ट किया पॉलीगॉन को, कितने भी साइड्स बने, अंत में जाके तो घूम के वहीं आएगा ना. कितना भी घूम ले, घूम फिर के तो वहीं आना है, उसी पॉइंट पे जहां से स्टार्ट किया हमने. सो बेसिकली द होल रोटेशन ऑफ 360 डिग्रीज इज हैपनिंग. So sum of exterior angles is always 360, because exterior angle क्या बता रहा है, रोटेशन ही तो बता रहा है. तो sum of exterior angles is equal to 360. जहां से स्टार्ट किया वापस से फिनिश होकर उसी पॉइंट पे आ जाएंगे. ओके, सो दिस इज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अगर हमारा n-2 into 180, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स आ गया 360 डिग्रीज. क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, ठीक है. सिमिलरली इफ वी हैव लेट अस से 5 पॉइंट्स and none of those points are collinear, यानी कि more than 2 points are not collinear. दो पॉइंट्स तो हमेशा एक लाइन पे लाई करेंगे, बट more than 2 points are not collinear in these 5 points. Okay, so if our
connecting these 5 points. So let us say first point से हमने कनेक्ट किया बाकी 4 पॉइंट्स को. So when we are connecting the adjacent points, we are making the sides. तो ये sides बन गई. This is a pentagon now. देखो फॉर्मूला तो मैं तुरंत ही तुम्हें बता दूं, बट अल्टीमेटली कोई भी चीज जब समझ लोगे ना तो ज्यादा मजा आएगा और फिर कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा. सो दिस इज अ पेंटागन. हमने साइड्स ऐड किया क्योंकि एडजेसेंट वर्टिसेस को हमने ऐड कर दिया, एडजेसेंट वर्टिसेस को कनेक्ट कर दिया. ओके, अब कनेक्ट करते हैं बाकी वर्टिसेस को एडजेसेंट के अलावा. सो इफ वी आर कनेक्टिंग द वर्टिसेस फ्रॉम दिस वर्टेक्स, सो दिस विल बी द फर्स्ट लाइन. दिस इज डायगोनल, डायगोनल है. सिमिलरली वी कैन कनेक्ट दिस विद दिस वर्टेक्स बिकॉज इन दोनों से तो कनेक्ट कर दिया है और वो साइड्स बन गया है. सो दीज टू आर डायगोनल्स, दीज टू आर डायगोनल्स. और कितने डायगोनल्स बनेंगे? दिस विल ऑल्सो बी अ डायगोनल, दिस विल ऑल्सो बी अ डायगोनल. नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट एक ये डायगोनल बन सकता है, एक पहले से बना हुआ है. इस पॉइंट से दोनों डायगोनल बने हुए हैं, यहां से भी दोनों बने हुए हैं. कितने डायगोनल्स बन गए हमारे? 1 2 3 4 and 5. Okay, so the whole point is that if we have n points in general, 5 points है यहाँ पे, तो कितनी नंबर ऑफ लाइंस बनेंगी? बिकॉज नन ऑफ 3 वर कोलिनियर, तो 5c2 बाय परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 5c2 नंबर ऑफ लाइंस होंगी, यानी कि 10 लाइंस हुई इन टोटल. एंड आउट ऑफ दीज 10 लाइंस 5 वर साइड्स ऑफ द पेंटागन एंड रिमेनिंग 5 वर डायगोनल्स. Remaining 5 were diagonals. Or in general, if there are n vertices और n gone है हमारा, in that case number of sides क्या होगा? n sides होंगी, n sides होंगी, but number of diagonals होंगे हमारे n into n minus 1 by 2 which is nc2 because n में से 2 पॉइंट्स कितने पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं? n into n minus 1 by 2 और minus number of sides that will be diagonals. Or in general, the formula will be n into n minus 3 by 2. This will be number of diagonals. For each polygon. क्या ये clear है? Okay. ठीक है. So quickly summarize करते हैं. For a regular polygon, and for a polygon in general, any polygon in general, so first thing is sum of interior angles. That is n minus 2 into 180 degree. This is also for any polygon. Sum of interior angles will always be n minus 2 into 180. But interior angles का angle का value क्या होगा? Value of one interior angle, because that will be equal in case of a regular polygon, but किसी और polygon में तो equal नहीं होगा. Okay, so interior polygon के लिए that will be n minus 2 into 180 divided by n, because n angles होंगे total, divided by n. Okay. Next, sum of exterior angles. That is 360 degrees for a regular polygon as well as for any polygon. But एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू, that will be defined for regular polygon, which will be 360 by n. Okay, in short, we'll write I for interior angle and E for exterior angle. Okay, now number of diagonals.
this will be n into n minus 3 divided by 2 for a regular polygon as well as for a general polygon. क्या ये पॉइंट्स क्लियर है? ठीक है, इज दिस मच क्लियर? ओके, ठीक है. ना एक दो कॉमन एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं. पेंटागन, सो पेंटागन यानी कि n इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 5. तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या आएगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल टू n minus 2 into 180. So this will be 3 into 180, 540 degrees. ओके, 540 डिग्रीज हो गया. सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या होगा? वो तो कांस्टेंट है सबके लिए, 360 डिग्रीज ओनली. सो वन इंटीरियर एंगल का वैल्यू विल बी 540 डिवाइडेड बाई 5, 108 डिग्रीज. एंड वन एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू विल बी, ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन दैट विल बी 360 बाई 5, 72 डिग्रीज. और कनेक्शन क्या है? द सम विल ऑलवेज बी 180. तो किसी एक की वैल्यू हमें पता है तो सेकंड की वैल्यू सीधे से निकाल सकते हैं. ठीक है, तो अगर एक एक्सटीरियर का हमने वैल्यू निकाली है तो वहां से भी इंटीरियर निकाल सकते हो. हमें पता है कि पेंटागन है, 5 साइड्स हैं, 360 बाई 5 किया, दैट इज मोर इजी. तो वहां से हमें 72 डिग्रीज एंगल मिल गया. एक्सटीरियर, इंटीरियर होगा 180 माइनस 72 यानी कि 108 डिग्रीज. ओके, क्लियर है? सो 180 माइनस 72 करके हमें वैल्यू मिल जाएगा इंटीरियर एंगल का. ठीक है, इज दैट पार्ट क्लियर? नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होगा? That will be 5 into 5 minus 3 यानी कि 5 into 2 by 2 which is equal to 5. दिखाई था अभी थोड़ी देर पहले. This is for pentagon. Now for hexagon. N is equal to 6. So sum of interior angles will be equal to n minus 2 यानी कि 4 into 180, 720 degrees. Sum of exterior angles will be 360 degrees only. So one interior angle का value for hexagon will be 720 by 6, 120 degrees. और one exterior angle का value will be 360 by 6, 60 degrees. And the number of diagonals, this will be equal to 6 into 3 by 2 which is equal to 9. Which is equal to 9. ओके, अब हेक्सागोन के सारे डायगोनल्स एक बार बना के देखते हैं. एक और प्रॉपर्टी समझनी है उसके बाद में. सो दिस इज अवर हेक्सागन. ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ. साइड्स तो पहले ही बना ली हमने फॉर ऑल 6 वर्टिसेस. अब बात करते हैं डायगोनल्स की. सो फ्रॉम पॉइंट ए बी तो साइड है, ए एफ भी साइड है. सो ए सी विल बी द फर्स्ट डायगोनल, देन ए डी विल बी देयर एंड ए ई विल बी देयर. एंड यू कैन ऑब्जर्व दैट ए सी एंड ए ई आर इक्वल, इजंट इट सो? ए सी इज इक्वल टू ए ई एंड ए डी इज द लॉन्गेस्ट डायगोनल. AD is longest diagonal. Okay. Similarly, for point B, BD is the diagonal, BE is the diagonal, and BF is the diagonal. Basically, from each vertex there are 3 diagonals. हर एक वर्टेक्स से 3 diagonals हैं और टोटल 6 वर्टिसेस हैं, तो 6 into 3. और क्योंकि एक डायगोनल हमारा 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करता है, दैट इज वाई डिवाइडिंग बाई 2, बिकॉज अदरवाइज डबल काउंट हो रहा है. वही सेम कॉन्सेप्ट हमारा n into n minus 3 by 2, बिकॉज अल्टीमेटली देयर आर टोटल n वर्टिसेस. ठीक है, और अगर मैं एक वर्टेक्स को सेलेक्ट किया, लेट अस से वी हैव सिलेक्टेड A, तो जब A को सेलेक्ट कर लिया तो उसके पड़ोसी जो हैं एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, यानी कि B एंड F. अब इनके साथ तो एक साइड बनाएगा, डायगोनल थोड़ी बनाएगा. तो फिर हमने एक तो पहले ही हटा दिया था, n में से 2 और हटाने पड़ेंगे बिकॉज उन दोनों के साथ में बनेगा साइड. तो n minus 3 बचे, तो n into n minus 3 दैट इज द प्रोडक्ट. और क्योंकि यहाँ पे डबल काउंटिंग हो रहा है, दैट इज वाई वी आर डिवाइडिंग बाई 2. क्या ये लॉजिक क्लियर है? ठीक है. सिमिलरली फ्रॉम C, CE is one diagonal,
CF is another. ओके, D से DF एक रह गया है अभी, तो अब सारे हो गए अपने 3 3 3 3 3 3, ये सारे हो गए. सो ऑल द 9 डायगोनल्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड. अब यहाँ पे एक पॉइंट और ऑब्जर्व करना है हमको. दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ हेक्सागन, सेंटर ऑफ द हेक्सागन. ओके, और हाउ मेनी डायगोनल्स आर गोइंग थ्रू द सेंटर? दिस इज वन डायगोनल, डायगोनल BE, then diagonal CF and AD, diagonals passing through the center. Because जो भी डायगोनल हमारा सेंटर से पास कर रहा है, that is the longest diagonal. That is the longest diagonal, and that diagonal is connecting the opposite vertices. The opposite vertices. ठीक है? So this will be equal to n by 2 for any polygon. This will be equal to n by 2. Number of diagonals passing through the center, that will be equal to n by 2. Very important. Passing through the center, this is equal to n by 2. But additionally, this is only possible in an even sided polygon. बिकॉज एक और साइडेड पॉलीगॉन में ऑपोजिट वर्टिसेस होंगे ही नहीं, एग्जैक्टली ऑपोजिट कोई भी वर्टेक्स नहीं होगा, ऐसा इवन वाले में एग्जिस्ट करेगा. दैट इज वाई देयर विल बी ओनली n by 2. ठीक है, फॉर एग्जांपल A के अपोजिट क्या है? D है. B के अपोजिट क्या है? E है. और C के अपोजिट है F. तो ओनली n by 2 पेयर्स विल बी देयर. दैट इज वाई n by 2 सच डायगोनल्स विल एग्जिस्ट. ओके, क्लियर है? ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑक्टागन एज वेल. So for an octagon, n is equal to 8. So sum of interior angles क्या हो जाएगा? 8 minus 2, 6 into 180, 1080 degrees. Sum of exterior angles will be 360 only, and one interior angle will be 1080 divided by 8. So 135 degrees, and one exterior angle will be 360 by 8, which is 45 degrees. And the number of diagonals will be 8 into 5 by 2, which is equal to 20. Out of these 20, 4 will be passing through the center. And these 4 will be the longest diagonals as well. है कि नहीं? क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. थोड़ा बेसिक तो हमने समझ ही लिया है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विद दिस कॉन्सेप्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर है पॉलीगॉन इज 140 डिग्रीज. तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होगा? व्हाट विल बी नंबर ऑफ साइड्स इन दिस पॉलीगॉन? ओके, ठीक है. अब इफ इंटीरियर एंगल, लेट अस से दिस इज द पॉलीगॉन, और इंटीरियर एंगल आ रहा है हमारा इक्वल टू 140 डिग्रीज. सो क्या अप्रोच होना चाहिए हमारा? इफ इंटीरियर एंगल इज 140, तो डेफिनेटली एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा हमारा? बिकॉज ऑल द कैलकुलेशंस विल बी इजियर फ्रॉम द एक्सटीरियर एंगल, बिकॉज वहां पे सम फिक्स्ड है. सो एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना होगा? 180 माइनस 140, तो दिस विल बी 40 डिग्रीज. और एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू होता है 360 divided by n for a regular polygon. So 360 by n is 40, and hence n will be equal to 9. So this must be a nonagon, a polygon with 9 sides. Clear? Next question. If one of the interior angles of a regular polygon is equal to 5 by 4 times of one of the interior angles of a regular pentagon, then number of sides of the polygon क्या होगा? One of the interior angles of a regular polygon, देखिए इंटीरियर एंगल का वैल्यू क्या गिवन है? 5 by 4 ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन. और पेंटागन में सम ऑफ एंगल्स क्या है? 540. ठीक है, 540 है, 5 साइड्स हैं, तो यानी कि वन एंगल इज 540 by 5, विच इज 108. तो 108 इंटू 5 by 4, 5 into 27, 135 डिग्रीज हमारा इंटीरियर एंगल है. तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होगा? अगेन इंटीरियर एंगल अगर 135 है
तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 45 होगा, एंड दिस इज इक्वल टू 360/8, 360/8 ऑब्वियसली, ठीक है, 360/n है, बट n की जगह 8 पुट कर दोगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी कि n मस्ट बी इक्वल टू 8, नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगा 8, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। ओके, इन ईच क्वेश्चन पॉज द वीडियो, सॉल्व इट फर्स्ट योरसेल्फ एंड देन वॉच द सॉल्यूशन। क्या क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, number of sides of two regular polygons are in the ratio 2:3 and each of their interior angles are in the ratio 9:10, number of sides in the polygon with larger exterior angle क्या होगा? वेरी गुड क्वेश्चन, इजी है, सिंपल है, बट एक बार सॉल्व करो अपने एंड पे, ट्राई करो। ओके, ट्राई एट योर एंड। पहले इसका एक रेगुलर अप्रोच समझेंगे, इसके बाद में शॉर्टकट समझेंगे, शॉर्टकट एज सच के शॉर्टर अप्रोच समझेंगे, जहां पे कि हम ज्यादा अपना अंडरस्टैंडिंग यूज करेंगे, इससे जो फॉर्मूला। देखो, नंबर ऑफ साइड्स गिवन है 2:3 के रेशियो में, तो मान लेते हैं नंबर ऑफ साइड्स है हमारा 2n एंड 3n। ओके, 2n साइड्स और 3n साइड्स है, बिकॉज 2:3 का रेशियो है नंबर ऑफ साइड्स का, एंड इंटीरियर एंगल्स का रेशियो क्या है, दैट इज 9:10। सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या आ जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर द फर्स्ट केस विल बी 2n - 2 into 180, दिस विल बी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इजंट इट सो? और अगर ये सम है तो एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होगा, एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होगा फॉर 2n साइडेड पॉलीगॉन, दैट विल बी डिवाइडेड बाय 2n। सिमिलरली फॉर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर 3n साइड्स विल बी 3n - 2 into 180, और एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू हो गया डिवाइडेड बाय 3n, एंड दिस रेशियो इज इक्वल टू 9/10, इजंट इट सो? सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, 180 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर इसके बाद में दिस बिकम्स इक्वल टू, अब देखो काटा पीटी में एक चीज का ध्यान रखना कि गलती नहीं करनी है कहीं पे, ठीक है, गलती नहीं करनी है हमेशा, इसलिए पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो और इसके बाद में फिर काटा पीटी करो। सो 2n - 2 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बिकम n - 1 ओनली, और डिवाइड बाई 3n - 2 बाई 3 है तो ये ऊपर जाकर पलट जाएगा, सो दिस विल बी n - 1 into 3 अपॉन 3n - 2, that is 9/10. Okay, so this will be 10n minus 10 is equal to 9n minus 6, so n will be equal to 4, n equal to 4 आ गया। क्वेश्चन पूछा नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगॉन विद लार्जर एक्सटीरियर एंगल, किसका लार्जर एक्सटीरियर एंगल होगा, जिसके केस में नंबर ऑफ साइड्स हमारा कम होगा, नंबर ऑफ साइड्स जहां पे कम होगा वहां पे लार्जर एक्सटीरियर एंगल होगा, या फिर जहां पे हमारा इंटीरियर एंगल इज स्मॉलर, यानी कि फर्स्ट केस में एक्सटीरियर एंगल हमारा लार्जर होगा। सो 2n विल बी द आंसर विच इज इक्वल टू 2 into 4 8। इज दिस क्लियर? ठीक है, ओके, अब ये तो हो गया इसका सिंपल अप्रोच जो कोई भी सॉल्व करेगा जिस अप्रोच से। मेंटोस अप्रोच क्या होगा, दिमाग की बत्ती जलाने वाला अप्रोच क्या होगा? तो क्वेश्चन ये कह रहा है हमें नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो गिवन है 2:3, ओके, एंड वी नो कि हमारा एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होता है, दैट इज 360/n। तो एक्सटीरियर एंगल का जो सम है दैट इज कांस्टेंट, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ऑल पॉलीगॉन्स, कांस्टेंट फॉर ऑल पॉलीगॉन्स। तो अगर सम कांस्टेंट है, सम कांस्टेंट है तो वी कैन से कि एज n इज इंक्रीजिंग वन एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू दैट इज डिक्रीजिंग इन द सेम प्रपोर्शन, isn't it so? फॉर एग्जांपल इफ n इज इक्वल टू 4 तो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या आ रहा है, दैट इज 90। इफ n डबल हो जाता है हमारा, n इज इक्वल टू 8 हो जाता है तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 60/8 यानी 45, हाफ हो जाएगा। तो पैटर्न समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो यानी कि अगर रेशियो हमारा नंबर ऑफ साइड्स का है 2:3, तो कैन वी से दैट एक्सटीरियर एंगल का रेशियो क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा 3:2, और इंटीरियर एंगल का रेशियो क्या है 9:10, इंटीरियर एंगल का रेशियो है 9:10। अब ध्यान से मेरी बात को समझना कि एक्सटीरियर एंगल का रेशियो क्या आ रहा है 3:2 आ रहा है, इंटीरियर का रेशियो क्या आ रहा है 9:10 आ रहा है, ओके, क्लियर है। और क्योंकि इंटीरियर एक्सटीरियर का सम कांस्टेंट है, सम कांस्टेंट है, isn't it so? सम इज कांस्टेंट, सम तो दोनों केस में 180 होगा,
दोनों ही केसेस में 180 होगा सम, इजंट इट सो? क्या ये क्लियर है? बट जितना इंटीरियर एंगल दूसरे वाले का ज्यादा होगा उतना ही फर्स्ट केस में एक्सटीरियर एंगल भी ज्यादा होना चाहिए, यानी कि डिफरेंस ऑफ इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो रेशियो है वहां डिफरेंस भी कांस्टेंट आना चाहिए हमारा, दैट डिफरेंस शुड ऑल्सो बी कांस्टेंट। क्या ये बात क्लियर है? तो डिफरेंस हमारा इंटीरियर एंगल में कितना आ रहा है, 1 यूनिट का आ रहा है, और एक्सटीरियर में डिफरेंस भी 1 यूनिट का ही है, यानी कि वी आर ऑन द करेक्ट साइड, हम सही कर रहे हैं बिल्कुल कैलकुलेशन हमारा। तो यानी कि एक्सटीरियर एंगल शुड बी 3 यूनिट्स फॉर द फर्स्ट पॉलीगॉन, 2 यूनिट्स फॉर द सेकंड पॉलीगॉन, इंटीरियर एंगल शुड बी 9 यूनिट्स फॉर द फर्स्ट पॉलीगॉन और 10 यूनिट्स फॉर द सेकंड पॉलीगॉन। क्या ये बात क्लियर है? ओके, तो सम हमारा कितना आ गया इंटीरियर एक्सटीरियर का, 3 + 9 12 यूनिट्स आ गया, और सम एक्चुअल में होता क्या है, दैट इज 180 डिग्रीज, सम इज 180 डिग्रीज। ओके, अगर 12 यूनिट्स की वैल्यू 180 है, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 15 डिग्रीज, तो एक्सटीरियर एंगल हमारा 3 यूनिट्स है फॉर द फर्स्ट केस, यानी कि 45 डिग्रीज है, और लार्जर एक्सटीरियर एंगल फर्स्ट केस में ही है 45 डिग्रीज है। तो 45 डिग्रीज अगर एक एक्सटीरियर एंगल है, दिस इज इक्वल टू 360/n, और यहां पे हमने n क्या एज्यूम किया है, नंबर ऑफ साइड्स इन द फर्स्ट केस, सो n की वैल्यू आ गई यहां से 8 विल बी द आंसर। क्या ये लॉजिक समझ में आता है? ओके, ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? बट एक चीज ध्यान रखना है कि सम शुड बी कांस्टेंट, सम इंटीरियर एक्सटीरियर का कांस्टेंट होना चाहिए, एडिशनली जो डिफरेंस है बीच का वो भी सेम होना चाहिए, बिकॉज अगर इफ इन द फर्स्ट केस 120 डिग्रीज है हमारा इंटीरियर एंगल और सेकंड केस में 150 डिग्रीज इंटीरियर एंगल, तो हमारा इंटीरियर एंगल 30 डिग्रीज ज्यादा है, तो एक्सटीरियर में यही डिफरेंस होना चाहिए, एक्सटीरियर फर्स्ट केस में 30 ज्यादा होना चाहिए, 60 होगा, सेकंड में 30 होगा, तो डिफरेंस शुड बी सेम। ओके, तो फिर हमें इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पॉलीगॉन 8 इंटीरियर एंगल्स आर 156 degrees each and rest of the interior angles are 166 degrees each, so find the number of diagonals in the polygon। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन द पॉलीगॉन क्या होगा? अब नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए हमें क्या चाहिए, n चाहिए, नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द पॉलीगॉन। 8 इंटीरियर एंगल्स हैं 156 डिग्री ईच के। अब यहां पे दिस इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन, तो फर्स्ट टाइप ऑफ इंटीरियर एंगल्स का वैल्यू है 156 डिग्रीज और सेकंड टाइप ऑफ इंटीरियर एंगल्स का वैल्यू है 166 डिग्रीज। तो अगर इंटीरियर एंगल हमारा आ रहा है 156 और 166, तो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होगा? इन द फर्स्ट केस दिस विल बी 180 - 156 यानी 24 डिग्रीज होगा, सेकंड केस में दिस विल बी 14 डिग्रीज, और सब सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है दैट शुड बी 360, वो तो 360 आना चाहिए। और 8 इंटीरियर एंगल्स है फर्स्ट टाइप के, लेट्स से n होंगे सेकंड टाइप के, सम विल बी 24 × 8 + 14n दैट इज इक्वल टू 360। ओके, ध्यान ये रखना है कि ये जो n का वैल्यू आएगा, या फिर यहाँ पे n के बजाय n - 8 मान लो, n - 8 एज्यूम कर लो, बिकॉज अल्टीमेटली जो n का वैल्यू आएगा, अदरवाइज गलती हो सकता है, n - 8 ही मान लेते हैं, सो दिस विल बी 14 × n - 8 एंड दिस टोटल इज 360, सो दिस विल बी 14n + 24 × 8 - 14 × 8 यानी +80 is 360, so n will come out to be equal to 20, n is equal to 20, बट क्वेश्चन में n तो पूछा नहीं है, क्वेश्चन ने पूछा है नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होगा। ओके, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या आ जाएगा, n 20 है, 20 × 17 this divided by 2, so this will be 170, आंसर विल बी 170। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्वायर इज प्लेस्ड ऑन अ रेगुलर पेंटागन एज शोन इन द फिगर, फाइंड द सम ऑफ द एंगल्स x एंड y, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, सिंपल क्वेश्चन है, बस सॉल्व कर लो एक बार अच्छे से इसको, और अगर सही सॉल्व हो जाए तुमसे अपने एंड पे तो कमेंट में मेंशन करना दैट यस यू सॉल्व इट परफेक्टली, बहुत ज़्यादा टाइम मत लेना। ओके, सो अब सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहली काम, दिस इज अ रेगुलर पेंटागन, सो ऑल द एंगल्स विल बी इक्वल टू 108 डिग्रीज, so this angle will be 108,
ऑल द एंगल्स विल बी 108. अब क्योंकि ये स्क्वायर है इसके अंदर और स्क्वायर का एक साइड कॉमन है, सो इफ वन साइड ऑफ पेंटागन इज 1 सेंटीमीटर, ऑल साइड विल बी इक्वल 1 1 ईच, एंड सो विल बी द केस फॉर स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर और पेंटागन का एक साइड तो कॉमन है, दिस इज कॉमन. तो स्क्वायर की भी सारी साइड्स 1 होंगी. ओके, एंड इफ दिस एंगल इज, बिकॉज स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्रीज है, सो इफ दिस एंगल इज 90, टोटल एंगल हमारा 108 था, दिस वाज 108, सो डेफिनेटली दिस एंगल विल बी 108 minus 90, यानी कि दिस विल बी 18 डिग्रीज. ये वाला एंगल 18 डिग्रीज होगा, isn't it so? And if this is 18, let's say this point is A B C D E हो गया है, this is F, this is G. So triangle AEF, in triangle AEF, AE और AF तो इक्वल है, so these angles will also be equal. और 18 एक एंगल आ गया हमारा, बचे हुए दोनों एंगल्स इक्वल हैं और उनका सम है 162, 180 minus 18, so this angle will be 81 degrees. This will also be 81 degrees. So x की वैल्यू क्या आ जाएगा, बिकॉज x प्लस 81 इज 108, ये पूरा एंगल तो 108 है, so x will be equal to 108 minus 81, 27 degrees. So x की वैल्यू तो मिल गई, x is equal to 27. Similarly focus on y. भाई ये दोनों भी तो इक्वल है, ए बी एंड बी सी, तो ट्राइंगल ए बी सी, ए बी एंड बी सी आर इक्वल, और ये एंगल कितना है, दिस इज 108, सो y विल बी इक्वल टू दिस वन एज वेल, दिस विल आल्सो बी y, तो 2y is 72, y will be 36 degrees. This will be 36 degrees. तो आंसर x plus y हमारा आ जाएगा इक्वल टू 27 plus 36, 63 degrees. This will be the answer. क्या ये क्लियर है? ठीक है, ओके, 60 degrees will be the answer in this case. Next question. Now another very beautiful question. Watch the video, read it properly, understand it, try to solve it. ठीक है, दिस माइट लुक लाइक सम इम्पॉसिबल क्वेश्चन, पर जब भी कोई क्वेश्चन इम्पॉसिबल टाइप लगे तो देयर मस्ट बी समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टूड. ठीक है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दैट क्वेश्चन. देयर इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, ईच मेंबर ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स S1n, where n is equal to 4, 5, 6 and so on, where n is the number of sides of the polygon, is circumscribing the circle. ठीक है, so a regular polygon is circumscribing the circle, और n is equal to 4 होगा तो फिर 4 साइड पॉलीगॉन होगा, 5 होगा तो 5 साइड पॉलीगॉन होगा, 6 होगा 6 साइड पॉलीगॉन होगा, एंड सो ऑन. And each member of the sequence of regular polygon S2n, where n is the number of sides of the polygon, is inscribed in the circle. यानी कि एक केस में S1n वाले सारे पॉलीगॉन्स हमारे क्या हैं, which are circumscribing the circle, यानी कि सर्कल के बाहर बने हुए हैं, और S2n वाले सारे के सारे पॉलीगॉन्स हमारे इनसाइड बने हुए हैं, inscribed हैं in the circle. Let L1n and L2n denote the perimeters of the corresponding polygons of S1n and S2n. Then L113 plus 2 pi divided by L217 क्या होगा? What will be the value of L113 plus 2 pi divided by L217? Okay, so the thing is that this is our circle. Now if you have a polygon that is outside the circle, और इनका तो रेगुलर होना भी जरूरी नहीं है, सारी साइड्स का इक्वल होना भी जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकती है साइड लेंथ हमारी. Okay, let us say this is a pentagon. So can you say that perimeter of this pentagon this will be greater than perimeter of the circle? Perimeter of the pentagon will be greater than perimeter of the circle, or in general perimeter of any polygon that is circumscribing will be greater than the perimeter of circle. और सर्कल का रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर, क्योंकि r इज इक्वल टू 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई. सो पेरीमीटर ऑफ एनी सर्कल, एनी पॉलीगॉन दैट इज सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 2 पाई.
डेफिनेटली ग्रेटर देन 2 पाई होगा, तो L1n फॉर एनी वैल्यू ऑफ n विल बी ग्रेटर देन 2 पाई। बाय द सेम लॉजिक, जो भी हमारा पॉलीगॉन इनसाइड द सर्कल होगा, फॉर एनी ऑफ दैट पॉलीगॉन फॉर वट एवर वैल्यू ऑफ n, द पेरीमीटर will definitely be less than the perimeter of circle, यानी कि L2n will definitely be less than 2 pi irrespective of n। irrespective of n, क्योंकि यहाँ पे हमसे एक रेंज दिया है और उस रेंज में हमें आंसर करना है। एग्जैक्ट वैल्यू तो हम पता ही नहीं लगा सकते कि क्या होगा, बिकॉज पहली चीज तो रेगुलर भी नहीं है, और रेगुलर होते भी तब भी पता नहीं लगा पाते, बिकॉज L113 इज 13 साइडेड पॉलीगॉन। तो वहां पे हम नंबर ऑफ पेरीमीटर कैसे पता लगाते, कोई तरीका ही नहीं है पता लगाने का। तो पता, अगर कोई तरीका है नहीं पता लगाने का, तो डेफिनेटली पता लगाना भी नहीं होगा। हमें एक अप्रोक्सीमेशन करना है, यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग करना था कि एनी पॉलीगॉन दैट इज सर्कमस्क्राइब्ड इन द सर्कल, द पेरीमीटर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 2 पाई, एंड एनी पॉलीगॉन दैट इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, द पेरीमीटर विल ऑलवेज बी लेस देन 2 पाई। ठीक है, सो हमारा न्यूमरेटर आ रहा है L113 प्लस 2 पाई, विच विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन, क्योंकि L113 हमारा क्या होगा, L1n is greater than 2 pi, तो L113 भी greater than 2 pi हो गया, this will be greater than 2 pi plus 2 pi, so this will always be greater than 4 pi, और L217 और L2n in general will be less than 2 pi। तो न्यूमरेटर हमारा 4 pi से बड़ा है, डिनोमिनेटर हमारा 2 pi से छोटा है। ठीक है, so this value is न्यूमरेटर is greater than 4 pi और डिनोमिनेटर हमारा 2 pi से छोटा है, so definitely this result will be greater than 2 फॉर एनी वैल्यू, बिकॉज अगर न्यूमरेटर बहुत कम भी होगा तो भी 4 पाई हो जाएगा। वर्स्ट केस सिनेरियो में न्यूमरेटर मिनिमम कितना होगा, 4 पाई होगा, 4 पाई होगा, इजंट इट सो। और डिनोमिनेटर हमारा मैक्सिमम केस में भी 2 पाई होगा, तब भी तो 2 आएगा, तब भी 2 आएगा, और वो सिर्फ और सिर्फ तब होगा जबकि इनफाइनाइट साइड्स का पॉलीगॉन हो, वो तो है नहीं, यानी डेफिनेटली दिस विल बी ग्रेटर देन 2, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ओके, इवन इफ दिस इज न्यूमरेटर इज 4.0001 पाई और डिनोमिनेटर इज 1.999 पाई, स्टिल ग्रेटर देन 2 होगा, तो आंसर इज ग्रेटर देन 2 ऑब्वियसली, ऑप्शन सी। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द साइड्स ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन इज एक्सटेंडेड टू फॉर्म अ स्टार शेप्ड फिगर, देन फाइंड द एंगल फॉर्म्ड एट ईच वर्टेक्स ऑफ द स्टार शेप्ड फिगर। ईच वर्टेक्स पे एंगल क्या बनेगा if sides of a regular octagon are extended? So for the first of all, एक regular octagon में number of sides कितना है, 8 है, number of sides 8 है, तो एक extended angle कितना हो जाएगा, 360/8, 45 degrees। so interior angle कितना होगा, that will be 135 degrees, 135, और shape कुछ ऐसा होगा। Okay, now we are extending all the sides to form a star shaped figure। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, बट बात समझ गए होगे। सो दिस इज द स्टार शेप्ड फिगर। नाउ दिस एंगल इज 135, so this will be 45, similarly this is also 135, so this will also be 45, so बचा हुआ एंगल क्या होगा, राइट एंगल होगा, बिकॉज ये तो एक ट्रायंगल है ना, तो 2 एंगल्स आर 45 45, तो थर्ड एंगल विल बी 90, थर्ड एंगल 90 हो जाएगा। क्या क्लियर है? ओके, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। नॉट जस्ट दैट, इफ यू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल, लेट अस से दिस इज ए, दिस इज बी, this is C. So in triangle ABC, BC is the side of octagon. Let us say this is equal to A, but ABC एक right angle triangle है जहां पे कि BA is perpendicular to AC, and these two are equal. BA and AC are equal. Equal होंगे because of symmetry. Equal होंगे, isn't it so? And if these are equal, so definitely ratio क्या आएगा हमारा right angle triangle में? This will be 1, this will be 1, this will be root 2. So root 2 units की वैल्यू है A. सो 1 यूनिट हो जाएगा हमारा a/√2। तो जस्ट इसके अगर साइड लेंथ भी पूछ लेता है यहाँ पे ए बी का,
वैल्यू भी पूछ लेता तो भी हमें पता होता है a/√2 आएगा वैल्यू। क्या ये क्लियर है? ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच साइड ऑफ अ गिवन पॉलीगॉन is parallel to either x-axis or y-axis. A corner of such a polygon is said to be convex if the internal angle is 90 degrees, or concave if the internal angle is 270 degrees. If the number of convex corners in such a polygon is 25, then find number of concave corners. अभी तक हमने सारे के सारे क्वेश्चंस किसके लिखे? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स के लिखे, बट यहाँ पे हमारा एक कॉन्केव पॉलीगॉन है जहाँ पे कि कुछ एंगल्स आर कॉन्केव, सम एंगल्स आर कॉन्केव, ठीक है, और ऑल द साइड्स आर ईदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, यानी कि एंगल हमारा या तो 90 का बनेगा या 270 का बनेगा, और कोई केस बनेगा ही नहीं। सो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स होता अगर, तो कितनी साइड्स होता? क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स होता तो सारे के सारे एंगल्स 90 का बना लेते अपन, और दिस वुड हैव बीन अ स्क्वायर और रेक्टेंगल, बिकॉज इक्वल होना जरूरी नहीं है, तो दिस वुड हैव बीन अ रेक्टेंगल, बट ऐसा तो है नहीं यहाँ पे। इस क्वेश्चन में देयर आर 25 कॉन्वेक्स कॉर्नर्स, तो नंबर ऑफ कॉन्केव कॉर्नर्स कितने होंगे? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। देयर आर टू अप्रोचेस टू द क्वेश्चन। पहले फर्स्ट अप्रोच समझते हैं। फर्स्ट अप्रोच इज सम ऑफ एंगल्स वाला केस अप्लाई करते हैं। लेट अस से देयर आर n साइड्स, ठीक है, n गॉन है हमारा ये, तो n साइड्स हैं, सम ऑफ एंगल्स क्या आ जाएगा? n-2 × 180, एंड आउट ऑफ दीज n साइड्स सम एंगल्स आर 90, सम आर 270, और 90 एंगल 90 वाले कॉर्नर्स कितने हैं? 25, बिकॉज कॉन्वेक्स कॉर्नर यानी कि 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री वाले कितने हैं? 25, तो 25 × 90 प्लस टोटल n कॉर्नर्स हैं, तो प्लस n-25 इंटू 270 हो जाएगा। बस अब सॉल्व कर लो इसको, बट सॉल्व करने से पहले एक चीज जो हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो चीज कॉमन दिख रहा है उसको सबसे पहले हटा लो, 90 से डिवाइड कर दो पूरे को, डिवाइड बाय 90, तो दिस बिकम्स n-2 इंटू 2 विच इज इक्वल 25 plus 3 into n-25. Now this becomes 2n minus 4 which is equal to 25 plus 3n minus 75. So 3n minus 2n, n is equal to 50 minus 4, 46. n comes out to be equal to 46, and out of these 46, 25 are convex corners. So बचे हुए 21 क्या होंगे? Concave होंगे, because n minus 25 are concave corners. तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। दिस विल बी वन अप्रोच। ये तो एक अप्रोच हो गया। क्लियर है? क्या ये समझ में आता है? ओके अब जो हमने डिस्कस किया था कि इफ वी हैड मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स, तब कितने होते? तब 4 साइड्स होते, रेक्टेंगल बनता। बट अगर हम एक यहां पे इन केस ऑफ रेक्टेंगल बना रहे थे हम, बट हमने एक कॉनकेव कॉर्नर इंट्रोड्यूस कर दिया, तब क्या होगा? भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल, यानी कि एनी साइड विल बी ईदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। ओके, सो एक हमने कॉनकेव कॉर्नर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो लेट्स से दिस इज द कॉनकेव कॉर्नर दैट वी इंट्रोड्यूस। अब वापस से अगर हमें इसी पॉइंट पे ऐड करना है इसको, सो विल हैव टू इंट्रोड्यूस नाउ वन एक्स्ट्रा कॉन्वेक्स कॉर्नर टू कंपनसेट फॉर दैट। तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 एंड 6। जितने कॉर्नर्स हैं उतना ही नंबर ऑफ साइड्स होगा। 6 साइड्स हैं, एंड आउट ऑफ दीज 6 1 इज अ कॉनकेव कॉर्नर, एंड ड्यू टू दैट वन कॉनकेव कॉर्नर वी हैव वन एक्स्ट्रा कॉन्वेक्स कॉर्नर कंपनसेटिंग फॉर दैट। ठीक है, बाकी बचे 4 तो होने ही होने थे, तो 4 तो ऑलरेडी है हमारे पास, but 2 extra are there, out of which 1 is concave, and due to that concave corner we have 1 extra convex corner. So if there are total n corners, so out of n corners we will be having 4 convex corners तो for sure होंगे। अब जो n-4 बच गया हमारा नंबर, out of those n-4 by 2 will be convex corners to compensate for n-4 by 2 concave corners। अगर 1 की बजाय हमने 2 कॉनकेव कॉर्नर्स इंट्रोड्यूस किए होते तो हमें 2 कॉन्वेक्स कॉर्नर्स और फर्दर चाहिए होते। उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। लेट अस से 1 2, और फिर हमने एक कॉनकेव कॉर्नर इंट्रोड्यूस किया, फिर एक और इंट्रोड्यूस कर दिया, 2 कॉनकेव हो गए। अब इसके बाद में 1 2 एंड फाइनली 3। नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड आउट ऑफ 8 2 आर कॉनकेव कॉर्नर्स,
4 तो हमारे कॉन्वेक्स पहले से थे, एंड ड्यू टू दीज 2 कॉन्केव कॉर्नर्स 2 मोर कॉन्वेक्स कॉर्नर्स आर देयर। क्या ये पैटर्न क्लियर है? ठीक है। सो क्वेश्चन हमें ऑलरेडी बता रहा है नंबर ऑफ कॉन्वेक्स कॉर्नर्स कितने हैं, 25। तो 4 तो इन एनी केस होने थे, 21 एक्स्ट्रा है, एंड दीज मस्ट बी बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ कॉन्केव कॉर्नर्स। सो आंसर विल बी 21 ओनली, ऑप्शन डी। क्या ये क्लियर है? क्या ये लॉजिक समझ में आता है? ठीक है, ओके। सो इतना ही रखते हैं सेशन में, एंड आई बिलीव कि जितना भी डिस्कस किया वो समझ में आएगा। नेक्स्ट सेशन विल बी डिस्कसिंग सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ हेक्सागन्स, क्योंकि हेक्सागन का एरिया हो गया और बाकी प्रॉपर्टीज जो हैं हेक्सागन के किसी पार्ट का एरिया, तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आते हैं, उनको भी समझेंगे। ऑक्टागन को भी इसी तरह से देखेंगे और फिर 1-2 और वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे। सो नेक्स्ट सेशन में उन चीज़ों को भी चेकआउट कर लेना। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग।